Hello guys, I am LK Tripathi again with a new video. Dear students, we shall discuss now about the medicine. As we have been discussing about the reign of Gupta, that is Gupta period, that is history chapter 11. In the field of medicine, what type of development, what type of treatment, what type of medicines were available those days during the Gupta? This discussion will give us a lot of information. So prominently those days the Ayurveda was on its extent. Only Ayurveda was the source of medicine through which the people or patients were treated. In the field of medicine, to an unprecedented progress was recorded during this age. Ayurveda, a system of medicine based on herbs and plants, was very popular at that time, and many diseases were cured with the help of this system. Doctors attended to patients in hospitals which were built during this period. Many texts and medicine were composed. Dhanvantari was the greatest physician of this time. Veterinary science also developed during this period. So we can say different types of plants, herbs, and other Ayurvedic medicines were available those days to cure the patients. Many hospitals, Ayurvedic hospitals, were constructed, were formed everywhere in the site of the empire. Veterinary science also developed during this period. Veterinary science means the treatment which is done for the animals, that is the veterinary science. पशुओं की जहाँ दवा होती है उनके लिए जो भी मेडिसिनल हम लेबोरेटरीज या ऐसे जो है साइट्स को और सेंटर्स को तैयार करते हैं, उसको हम जानवरों के इलाज के लिए तैयार करते हैं, वेटरनरी बोलते हैं उसको. बहुत सारे फिजिशियंस उस समय अवेलेबल थे उस पीरियड में. धन्वंतरी, हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ आयुर्वेदा, हिज medicines, his books, and his direction for the medicine was available those days also. After that, now let's reach to the decline of the Gupta dynasty. गुप्ता डायनेस्टी का कैसे खात्मा हुआ, कैसे ये ख़त्म हुई, दिस चैप्टर और दिस टॉपिक विल गिव अस many information about that. There were a number of factors that led to the decline of the Gupta dynasty. बहुत सारे इसके कारण रहे गुप्ता डायनेस्टी के ख़त्म होने के. फर्स्ट लेट्स गेट नो द सक्सेसर ऑफ स्कंदगुप्ता वेयर वेरी वीक, inefficient and incapable of keeping the West Kingdom under their control. Skandagupta, who was the last Gupta ruler and he strong Gupta ruler, we can say, after that, whosoever assumed the throne has the power, could not maintain the strength and stability of the empire, of the kingdom. They become very weak, inefficient and incapable in all respect, so that they could not maintain the strength of this dynasty. Second,
Land-based grants in lieu of cash made the officials strong and independent. This proved to be a setback for the empire. जो लैंड बेस्ड ग्रांट थे इन लिeu ऑफ कैश, जो कैश में मिलती थी, जो ज़मीनों का कर जो है कैश में मिलता था, वो ऑफिसर्स जो थे, जो अधिकारी थे कोर्ट के, वो सारे स्ट्रांग होते गए, वो इंडिपेंडेंट होते गए। इसके सीधे सीधे इसका लाभ उन अधिकारियों को और उन कोर्टियर्स को मिलता गया और इस तरह से एक बहुत बड़ा सेटबैक एम्पायर को मिला। एम्पायर कमज़ोर हो गया। बहुत बड़ा सेटबैक, एक धक्का उनके लिए था, क्योंकि अधिकारी जो भी कोर्ट के थे, कोर्टियर से, उन्होंने दे प्लंडर एंड मिससीव द एम्परर्स। नंबर नेक्स्ट, capitalizing on the weakness of the center, the governors of provinces revolted and broke away. जो गवर्नर्स थे, जो भी सेपरेटली दे वेर अपॉइंटेड इन डिफरेंट प्रोविंसेस, revolted and broke away the strength of the kingdom, and they capitalized their own treasury. वो खजाने को लूटते गए और अपने खजाने भरते गए। इस तरह से एम्पायर कमज़ोर होता चला गया और यहाँ एक बहुत बड़ा जो है सेटबैक एम्पायर के लिए हुआ। द अटैक्स बाय द हुन्स, ए नोमैडिक ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वीकेंड द एम्पायर एंड लेड टू इट्स डिक्लाइन। जो हूण थे, जो नोमैडिक ट्राइब्स थे सेंट्रल एशिया के, इन्होंने अटैक किया यहाँ पर और एम्पायर को इन्होंने कमज़ोर कर दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि एम्पायर डिक्लाइन को चला गया, एम्पायर डाउनफॉल को चला गया। एंड दिस वाज आल्सो ए प्रोमिनेंट काज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ दिस डायनेस्टी। नंबर नेक्स्ट, न्यू किंगडम्स आफ्टर द गुप्तास। गुप्ता के बाद नए किंगडम का यहाँ पर प्रोमिनेंस होता है। ये कौन से लोग थे? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, इंडिया ब्रोक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स। 3 kingdoms were the most important among them. गुप्ता के बाद 3 ऐसे किंगडम्स जो प्रोमिनेंस में आए, पावर में आए, वो कौन लोग थे? इसको जानते हैं। These were the kingdoms of थानेश्वर under हर्षवर्धन। थानेश्वर, that is modern Haryana, and the 2 southern kingdoms of Chalukyas and the Pallavas or Pahalwas। जो गुप्ता एम्पायर इंडिया का जब ये टूटा तो बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में बंट गया, छोटे छोटे साम्राज्य में, राज्यों में बंट गया। इसमें से जो 3 प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो किंगडम्स थे वो कौन कौन से थे? थानेश्वर, जो हर्षवर्धन के अंडर में था, और 2 सदर्न किंगडम्स जो चालुक्यों और पल्लवाज के अंडर में था। वहाँ पर साउथ पार्ट में पल्लवों का शासन रहा, चालुक्यों का शासन हुआ इन दैट पीरियड। इस तरह से जो किंगडम्स का डाइवर्जन, इसमें जो सेटबैक हुआ, इस तरह से हुआ उस समय। अब पुष्यभूति एंड हर्षवर्धन। हु वाज पुष्यभूति? What was relation with Harshvardhana? The kingdoms of Thaneshwar was founded in the latter half of the 6th century Christian era by प्रभाकर वर्धना। जो थानेश्वर का किंगडम था उसको बाद में 6th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा में के बाद में जो है प्रभाकर वर्धना के द्वारा इसको फाउंड किया गया, इस्टेब्लिश किया गया।
His dynasty came to be known as the पुष्यभूमि डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को हम पुष्यभूमि डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। His son Harshvardhana was a powerful ruler who brought together most of the regional kingdoms of North India and founded a unified empire। जो पुष्यभूमि का जो बेटा था हर्षवर्धन, he was his son, a very powerful and brave ruler, became in the history of India, as we have discussed it in the live class also, brought together most of the regional, he consolidated most of the regional kingdoms of North India and a very unique and unified empire he founded during his reign, his rule. Now let's go ahead. मिलिट्री कैंपेन्स। मिलिट्री कैंपेन्स कैसा था इसका? इन द अर्ली 7th century Christian era, Harshvardhana became the ruler of Thaneshwar, that is in modern Haryana. He succeeded his brother राजवर्धना। राजवर्धना के गद्दी छोड़ने के बाद, मरने के बाद जो उसका भाई था, ये एज्यूम किया थ्रोन को थानेश्वर के। Soon after acquiring power, Harsha united the kingdoms of Thaneshwar and Kannauj। जैसे ही बहुत जल्दी इस पावर्स को एक्वायर किया, अपने शक्ति को संगठित किया और थानेश्वर और कन्नौज किंगडम को ये यूनाइट किया। He made Kannauj his capital. This was done to control the empire in a better way, and also he controlled northwestern borders where the Huns had been posing a threat to the center। इसके बाद से ये इस एम्पायर को कंट्रोल किया, बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया, और इतना ही नहीं, नॉर्थ वेस्टर्न जो बॉर्डर्स था उसको भी इसने कंट्रोल किया। जिस इलाके में हूनों का शासन था, और हून्स हमेशा दे क्रिएटेड ऑलवेज थ्रेट in the area, in the regions, and Harshvardhana tried to control their threat, their extension in the area by his own brilliance and wisdom। और इस तरह से नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स को हर्षवर्धन ने कंट्रोल किया। कन्नौज was relatively safe from foreign invasions। The Gangetic Plain could also be better supervised from here। और कन्नौज को जो है ये बहुत ही सेफ जगह माना जाता था, यहाँ पर किसी तरह का थ्रेट नहीं था। एक दिस वाज अ वेरी सेफ सेंटर एंड इट वाज अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स। द गंजेटिक प्लेन कुड आल्सो बी बेटर सुपरवाइज फ्रॉम हियर। और ये गंगा के किनारे का इलाका भी यहाँ से बहुत अच्छी तरह से कवर किया जा सकता था। अब हम देखते हैं आफ्टर शिफ्टिंग हिज कैपिटल, हर्षवर्धना कॉन्क्वर्ड पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। यहाँ कन्नौज में अपनी कैपिटल शिफ्ट करने के बाद हर्षवर्धन यहाँ से आगे बढ़ा, पंजाब को जीता, ईस्टर्न राजस्थान को इसने कॉन्क्वर किया, उत्तर प्रदेश बिहार को जीता, बंगाल और उड़ीसा को अपने अधीन किया। फ्रेंडली रिलेशंस वेयर मेंटेन्ड with the rulers of Assam and बल्लभी, that is in गुजरात। यहाँ इसने जो है आसाम में, गुजरात में, ये वहाँ के बल्लभी जो भी यहाँ के रूलर्स थे बल्लभी के आसाम के, उनसे इसने फ्रेंडली रिलेशनशिप यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया, फॉर्म किया। हर्षा डिड नॉट एनेक्स
all the territories that he conquered, और हर्ष जो है जितने भी टेरिटरी को जीता उस पर उसने शासन नहीं किया, अपना रूल स्थापित नहीं, खुद का शासन नहीं किया, और उसने जो है उस टेरिटरी को छोड़ दिया। हाँ, फर्क यही था कि सम ऑफ द डिफीटेड किंग्स कंटिन्यू टू रूल ओवर देयर किंगडम्स एज सबऑर्डिनेट रूलर्स। जो भी उस राज्य के शासक थे या राजा थे, उन्होंने एक सबऑर्डिनेट रूलर्स की तरह से रूल किया वहाँ पर, और टाइम टू टाइम दे पेड द रेवेन्यू, अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, मिलिट्री हेल्प they provided to Harshvardhana time to time. They accepted Harsha as their overlord and paid him a yearly tribute. During wars, they also supplied him with money and soldiers. उन्होंने हर्षवर्धन की सुप्रीमेसी को, उसके पावर को स्वीकार किया, और समय समय पर उसके लिए जो टैक्सेस होते थे, जो भी ट्रिब्यूट होते थे, वो उसको देते गए। और इतना ही नहीं, सोल्जर्स की ज़रूरत जब होती थी लड़ाई के समय में, युद्ध के समय में, तो ये जितने भी टेरिटरीज थे हर्ष को वो प्रोवाइड करवाते थे। हर्षा established diplomatic relations with China. He tried to expand his kingdom beyond the river Narmada इन द डेक्कन। चाइना से इसने बहुत अच्छा रिलेशनशिप अपना बनाया, और जो रिवर नर्मदा है डेक्कन में, उसके पार जा कर के वो जो है अपनी कैपिटल अपने पावर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया। बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एज पुलकेशिन सेकेंड, द चालुक्य किंग ऑफ वातापी और बादामी। लेकिन वो पुलकेशिन सेकेंड की तरह से जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। द चालुक्य किंग ऑफ वातापी और बादामी ऑफ नॉर्दर्न कर्नाटका स्टॉप्ड हिम। यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया चालुक्य और वातापी ने, जो कर्नाटका के उत्तरी कर्नाटका के किनारे इसको रोक दिया गया। अब हम देखते हैं हर्षा एज ए पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट्स। आर्ट में हर्ष की कितनी रुचि थी, इसको जान लेते हैं। हर्षा वाज ए पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड राइटिंग। ही वाज एन accomplished playwright himself. He wrote 3 plays in Sanskrit: रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंदा। ये 3 प्लेज उसने जो है अपने खुद लिखा। वो साहित्य प्रेमी, आर्ट प्रेमी बहुत ज़्यादा था। बाणभट्टा वाज ए फेमस स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ हर्षा। ही रोट हर्षचरिता एंड कादम्बरी। दीज वेयर अदर स्कॉलर्स इन हर्षा's court such as Shubandhu, Mayur Bhatta, etc. So up to here we have discussed this topic. Rest we shall discuss in the next video, in the next time when we will gather together with new class. Till then, do your work properly and be sincere, conscious. Now, thank you. Have a nice day.